کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مٹی میں تمہیں دبایا جائے گا اسی مٹی سے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا نہیں جائے گا تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم سے حساب و کتاب بھی ہوگا، ہم سے سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، جو سوال ہم سے کیے جائیں گے، جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے، وہ ماحول سوال کے وقت بڑا دردناک ہوگا، بڑا کربناک ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مقدس اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اندازہ فرمائیں جب معصوم کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا ہوگا، جب ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اس کیفیت کو اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، علماء کے خطابات کو اگر سننے کے لیے اور دل میں جگہ دینے کے لیے آئے ہو تو ذرا غور فرمائیں، ایک وقت وہ بھی آنا ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ رسول اللہ کی بات پر یقین کرتے ہو اور یقیناً یقین کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر اللہ اکبر دین اسلام کو سچا مذہب مانا، وہ رسول فرماتے ہیں یوم حساب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک خواتین و حضرات ذرا تصور تو کریں، آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، تو گرمی کے موسم میں انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے، انسان کتنا مضطرب ہوتا ہے۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انسان پسینے میں شرابور ہوگا۔ سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں، کوئی ٹکنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ہچکولے کھا رہا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام ہوگی۔ اور پھر خاص اس پسینے کی کیفیت کو، اس پسینے کی کیفیت کو خاص بیان کیا، اللہ اکبر، ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تصور میں لائیں، ذرا غور کریں، ایک کا پسینہ دوسرے کو پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا۔ سوچو کیفیت کیا ہوگی۔ صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہو، انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی، اور سارے نبیوں کی زبان پر اس وقت نفسی نفسی، سوائے سید الانبیاء کے، اللہ کے رسول غیب دا نبی شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر نبی کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ غور فرمائیں اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں سے جس سے چاہے گا بہت سوال کرے گا۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ آیہ کریمہ میں آیا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
उस दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, नईम के बारे में तुमसे सवाल होगा, नईम के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अब नईम का मतलब क्या है? इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरान की एक एक आयत के 70 हजार मानी है, इसलिए हतमी तौर पर हम कुरान मुकद्दस के बारे में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही माना है और दूसरा कोई माना नहीं है। उसकी वजह यह है, चूंकि दारुल का जलसा भी है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं उसका, अल्लाह अकबर, उसकी वजह यह है कि कुरान जिंदा किताब है। इमाम शारानी लिखते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, लेकिन मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी ईमान वालों के दिलों पे हो रहा है। अरे जब गालिब और इकबाल के अशार के इतने माना बयान हो सकते हैं तो कुरान की आयत के कितने माना बयान होंगे? जब मखलूक के माना में एक कलाम में इतनी मानवीयत है तो खालिक के कलाम के माना की मानवीयत का आलम। ये कुरान है, ये जिंदा किताब है, इसलिए इसके कई माना है। जितना इल्म बढ़ता जाएगा उस वक्त इतना इंसान को अपनी कमिलमी का एहसास होता जाएगा। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं तो गालिब इकबाल की बात क्या, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के किसी शेर को आप पढ़ें, यहाँ बैठे हुए उलमा अपने अपने इल्म और ज़ौक़ के मुताबिक कई माना उसके बयान कर सकते हैं। जब शायरी के इतने माना हो सकते हैं तो वो कलाम जो ना नज्म है, जो ना नस्र है, हाय हाय, इसलिए कि उसको नज्म कहे तो किस तरह कहे? क्यों? इसलिए कि अगर उसको नज्म कहते हैं तो फिर इसको किस खाते में रखोगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अगर उसको नज्म कहते हो तो इस कलाम का क्या माना बयान करोगे? ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। अगर उसको नज्म कहते हो, अल्लाहु अकबर, तो फिर इसका क्या माना बयान किया जाएगा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और अगर उसको नस्र कहते हो तो फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, कुरान मुकद्दस की इन आयतों को क्या नाम दोगे? न क्या नाम दोगे? अल कारिया, मल कारिया, वमा अदराका मल कारिया। अंदाजा फरमाए ये वो कलाम है जहां पर अल्लाहु अकबर काफिया बंदी की नुदरते सजदा रेस नजर आती है। अंदाजा फरमाए, अल्लाहु अकबर। अरे जब महबूब के कलाम की ये शान है कि मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है छपेला छे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा रही, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, लबसे के जा दो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अंदाजा पर जब महबूब के कलाम की ये शान है तो खालिक के कलाम, जिसने महबूब के मुंह में ज़बान दी है, जिसने महबूब के मुंह में ज़बान दी है, उस खुदा के कलाम की शान का आलम क्या होगा। मगर अफसोस हमारी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया। और एक बात आपको बताऊं, याद रखना, जैसे जैसे 10 साल गुजरते हैं ज़बानें तब्दील होती हैं, जैसे जैसे 10 साल गुजरते हैं ज़बानें तब्दील होती हैं। 25 किलोमीटर का अरसा, 25 किलोमीटर का इंसान डिस्टेंस तय करता है तो लहजा तब्दील होता है। 10 साल पे ज़बानें तब्दील होती है, 25 किलोमीटर पे लहजा तब्दील होता है। ये दुनिया का दस्तूर है। और जो ज़बान बदलती नहीं वो फरसूदा हो जाती है, वो मतरूक हो जाती है, वो तर्क कर दी जाती है। देख लें, अंग्रेजी में पहले बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, अब वो सुनने को नहीं मिलते, मिलते सुनने को नहीं मिलते। इसी तरह से उर्दू जबान में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते थे, अब वो सुनने को नहीं मिलते। क्यों? इसलिए कि जमाना बदला, जबान का अपना अंदाज बदला। मगर कुर्बान जाए, ये कुरान की जबान है। 1450 साल हो चुके हैं मगर उस दिन जैसी नहीं लगती थी आज भी वैसे ही नहीं लगती नजर आती। और फिर अंदाज क्या है? मुफक्किरीन कहते हैं ये वो जबान है, कुरान कानून की जबान है। और ये भी आपको बता दो,
रफीगंज और गिरदो नवाज से आने वालों, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तवज्जो करना कि कानून की जबान सिर्फ हाँ या ना की जबान होती है। कानून की जबान में सिर्फ दफात होते हैं, कानून की जबान में बड़ी खुशकी होती है। सबसे बोरियत अगर कोई जबान है तो वो कानून की जबान है। अल्लाहु अकबर, उसमें ये होता है कत्ल हो तो ये होगा, कोई मार दिया जाए तो ये होगा, तलाक दिया जाए। अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे, तलाक का मसला कुरान से बयान कर रहे थे, बल्कि इद्दत का मसला कुरान से बयान कर रहे थे। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जिसको किताब में कानून बयान होता है उसमें हिसाब बयान नहीं होता, जिसमें रियाजी के उसूल बयान होते हैं उसमें साइंस बयान नहीं होता, जिसमें साइंस बयान होता है उसमें टेक्नोलॉजी का तस्करा नहीं होता, जिसमें टेक्नोलॉजी बयान होती है उसमें दिल का जिक्र नहीं होता, साहिबे दिल का जिक्र नहीं होता। अल्लाहु अकबर, जिसमें टेक्नोलॉजी बयान होती है उसमें सुबह और शाम का जिक्र, सुबह और शाम का जिक्र नहीं होता, गुलो बुलबुल का तस्करा नहीं होता, बागो बहार का जिक्र नहीं होता। और जिसमें बाग का जिक्र आ जाए फिर उसके अंदर जो है वो आग का जिक्र नहीं होता। जहां आग का जिक्र हो वहां बाग का जिक्र नहीं होता, जहां नफरतों का जिक्र हो वहां मोहब्बतों का जिक्र नहीं होता, जहां मोहब्बतों का जिक्र हो अल्लाहु अकबर वहां पर खिजा का तस्करा नहीं होता, जहां खिजा का तस्करा हो वहां बहार का तस्करा नहीं होता। मगर ये एक किताब है और सिर्फ एक किताब है। और एक बात अंदाजा करें, जहां खिचड़ी पकती है फिर वो किताब नहीं रह जाती बल्कि एक फरसूदा किसी के ख्याल और नजरियात का तर्कशुदा मुसव्वदा बन जाती है। मगर ये किताब अल्लाह की किताब है। जब ये कानून बयान करती है तो फिर कानून बयान करती है, लेकिन कानून के साथ फिर ये अहले दिल के अहवाल भी बयान कर देती है। जब ये अहले दिल की बातें करती है तो समंदर की कश्तियों का जिक्र भी बयान कर देती है। समंदर की कश्तियों का जिक्र करते करते ये दरियाओं का तस्करा भी करती है, ये बहारों का तस्करा भी करती है, ये खिजा का तस्करा भी करती है, ये जन्नत का तस्करा भी करती है, ये जहन्नम का तस्करा भी करती है, मियां बीवी के ताल्लुकात का तस्करा भी करती है, निकाह के अहकामात भी बयान करती है, तलाक का कानून भी बयान करती है, शफक का जमाल भी बयान करती है, उफक की सुर्खी बयान करती है, सितारों की अंजुमन भी बयान करती है, कहकशा भी बयान करती है, रात की तारीकी भी बयान करती है, दिन का उजाला भी बयान करती है, मुत्तकियों का तकवा भी बयान करती है, फिस्क फुजूर का फिस्क फुस्ताक का फिस्क फुजूर भी बयान करती है, जिन्नातों की कायनात भी बयान करती है, फरिश्तों की कायनात भी बयान करती है, इंसानों का तस्करा भी बयान करती है, तारीख इंसानियत भी बयान करती है। अल्लाहु अकबर, सब बयान होता है लेकिन कचमच बयान ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मोती झड़ते नजर आ रहे हैं, जैसे फूल झड़ते नजर आ रहे हैं, और इंसान ये कहने में मजबूर होता है ये कलाम वाला बेमिसाल है तो उसका कलाम भी बेमिसाल। ये अल्लाह ने वो किताब हमें अता फरमाई है। बहुत सारे बच्चे आज हाफिज बने होंगे, उनके सर पर कुरान के हिफ्ज की दस्तार रखी जाए। बहुत सारे बच्चे आलिम बने होंगे, उनके सरों पर अल्लाह अकबर नियाबत रसूल का ताज रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, इस माहौल में, कौन से माहौल जिसमें नाक से भेजा बह रहा होगा, इस माहौल में जबकि इंसान के सर के ऊपर सूरज चमक रहा होगा, इरशाद होता है उस वक्त जब माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा, खून के रिश्ते टूट रहे होंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के इनकारी होंगे, औलाद माँ बाप से दूर, माँ बाप औलाद से दूर। अल्लाह अकबर। गुजरा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो, बाप पे गुजरे तो बेटे को नहीं मालूम, बेटे पे गुजरे तो बाप को नहीं मालूम। चंद जुमले खो करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, बड़ी माजरत के साथ। अकीदा मेरा भी वही है जो इन सब उलमा का है।